Hi, Dr. Joshi, Dhananjay Joshi. Welcome on Europedia. Thank you very much, Dr. Vijendra. And I must thank you, sir. You gave your time for on this Sunday for this interaction. And this entire interaction is related to the conference of vice chancellors, Northern Zone vice chancellors, which you attended in November in Punjab University. And the theme was discussion on the implementation of National Education Policy 2020. सो प्रोफेसर जोशी आपने उस कॉन्फ्रेंस में आपने अटेंड किया था सर। हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया कि मैं आपसे वहां इन पर्सन इंटरेक्ट कर पाऊं। सो यू गेव मी टाइम टुडे फॉर दिस जूम इंटरेक्शन। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। और आपका जो टॉपिक था सर डिस्कशन का वहां पे भी, दैट वाज कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर टीचर्स so that they impart quality education in the educational institutes, which eventually is very much linked with the implementation part of national education policy. तो आज का जो मेरा डिस्कशन है प्रोफेसर जोशी वो दो तीन वर्टिकल्स में मैंने बांटा हुआ है। एक सर हम आपसे आपकी यूनिवर्सिटी विच इज दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद सर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आपका पर्सपेक्टिव जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपका यूनिवर्सिटी में इस डायरेक्शन में क्या काम चल रहा है सर। And then we will discuss about your main initiative which you have taken to enhance the capacity building initiatives for teachers who can impart the quality education उसके बारे में discussion करेंगे। And then during the discussion impromptu I'll be discussing couple of points. So I start with the you sir, your background and the discussion about your university, that is Delhi Teachers University. Let me thank you first of all, your channel, Dr. Vijendra, for passionately taking the agenda of education, improvisation of capacity building of teachers. The conference which has been organized under the aegis and umbrella of UGC, I especially from my core of the heart give my gratitude to Professor M. Jagdish Kumar, who throughout with us in that 3 days conference, 22, 23, and 24th of November last month, held at University of Punjab University, Chandigarh. Also to the organizers of this conference, basically the North Zone organizers, Professor of the Punjab University, Professor Vice Chancellor, Professor Renu, and Professor Tankeshwar Kumar, who is also the Vice Chancellor of Central University of Haryana, Mahendragarh. उन्होंने एक बहुत बड़े मुद्दे पर पूरे देश के नॉर्दर्न जोन्स के वाइस चांसलर को एक मंच पर लाने का जो दायित्व लिया, उसके लिए मैं अपने हृदय से यूजीसी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि देश के इतिहास में नई शिक्षा नीति एक मील का पड़ाव है, एक मील का पत्थर है। ऐसे में जो भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं जिन्होंने उस विजन को इम्प्लीमेंट करना है, उनको एक मंच पे लाना, ये एक बहुत बड़ा काबिले तारीफ एफर्ट रहा यूजीसी का। और उसमें हमें मौका मिला सीखने का। उसमें बहुत सारी 15 से अधिक थीम थी और उसमें एक थीम मेरे पास भी थी जिसमें मैंने शिरकत करी और अपने विचार भी व्यक्त करे। तो ये बात तो आपको इनिशियली धन्यवाद से संबंधित थी। दूसरा जो प्रश्न है आपका, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट माय यूनिवर्सिटी। सी माय यूनिवर्सिटी, आई एम बेसिकली अ फाउंडर वाइस चांसलर। मैं इस यूनिवर्सिटी का संस्थापक कुलपति हूँ। एंड बीइंग द फाउंडर वाइस चांसलर, बिफोर दैट आई वाज अ डीन of Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi. So now, after inception of this university has been founded. It's a state university founded by Government of Delhi under the Legislative Act 2020, 2022, and it was founded in March 2020 at New Delhi, Mukherjee Nagar. So this university has a very very unique mandate, Vijendra ji. टीचर्स के लिए अभी तक कोई स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं की जा रही थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति ने शिक्षक विश्वविद्यालयों की वकालत करी है। क्योंकि आजादी के बाद अगर आप देखें, भारत में एम्स बन गया था 1962 में, आईआईटीज बन गई 60 के दशक में ही, आईएम्स बन गए 70 के दशक में, जहां मैनेजरियल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, डॉक्टर्स की एजुकेशन, आर्किटेक्चरल एजुकेशन को इतना महत्व दिया गया। पर जो इनका निर्माता है, जिसके बारे में हमने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो हम आचार्य देवो भव की बात करते हैं कि टीचर इज द डेस्टिनी मेकर,
जब कोठारी कमीशन, जो भारत का पहला राष्ट्रीय आयोग आया, उसने कहा नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स, सेम हैज बीन रिथॉरिक बाय द एजुकेशन पॉलिसी 86, कि डेस्टिनी ऑफ ए नेशन बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, कि किसी भी देश का भविष्य वहां की कक्षा में पैदा होता है और संवरता है। तो देश की कक्षा का भविष्य कौन संवारता है, इंजीनियर्स को कौन बनाता है, डॉक्टर्स का निर्माण कौन करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो टीचर करता है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग को, खास तौर से प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया। अगर दिया भी गया तो बहुत सरसरी तरह से उसको एक यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना के वहां से हमने बीएड की डिग्री दी, और उस डिग्री के बाद जब वो ग्राउंड में आया, उसके बाद किसी तरह की बहुत ज्यादा इन सर्विस पर भी कोशिशें नहीं हुई। तो एक बार अध्यापक कोई बन गया, अगर हमने उसको मांझा नहीं, उस पर काम नहीं किया, अगर उसको हमने जो है उसकी पूरी सर्विस के दौरान इनपुट्स नहीं दिए, तो क्या होगा कि हम एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जहां पर अध्यापक को अगर हमने केंद्र में रख के हम नहीं चले, तो मुझे लगता है किसी भी सिस्टम को बनाने में, किसी भी देश को बनाने में, अगर आप चाणक्य से लेकर के किसी भी देश के महान विद्वान की भारत में बात करें, जो तक्षशिला के जो सबसे बड़े कुलगुरु थे, तो उनको भी आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। जब आज भी हम एजुकेशन में तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला की बात करते हैं, तो अगर भारत को अपनी प्राचीन परंपराओं से सीखना है, जिसके बारे में आईकेएस की बात करती है, ये पॉलिसी इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी शुरुआत की है इस नई शिक्षा नीति ने। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि दिल्ली में टीचर्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। इट्स ओन काइंड ए स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी। वी आर वर्किंग इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। वी आर आल्सो लॉन्चिंग various programs, including ITEP program, 4-year integrated teacher education program, from the coming session, and from the next sessions we are also starting many education programs focused to teachers training only. So this is our mandate, and for that mandate we are working day and night, Vijendra ji. Professor Dhananjay, it is I'm very glad to know about creation of this university, और जो आपने सारा बताया सर, उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव बहुत ही यूनिक है, और आपने ये भी बताया रिसेंटली मार्च 2020 में ये बनी है। मैं दो तीन इससे रिलेटेड 22 सर में। आपसे 2022 में बनी है, सॉरी। सो इससे रिलेटेड सर मैं दो तीन पॉइंट्स पूछूंगा। जैसे हम लोग जानते हैं कुछ और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने नाम सुना है, आई मे बी रॉन्ग, जैसे निटर चंडीगढ़ की हम बात करें, वो भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टीचर ट्रेनिंग से सर रिलेटेड डील करते हैं। अब ये डेडिकेटेड एक यूनिवर्सिटी है सर, टीचर्स यूनिवर्सिटीज को बोलते हैं, शिक्षक विश्वविद्यालय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। तो क्या सर ऐसी टीचर्स यूनिवर्सिटी, शिक्षक विश्वविद्यालय और भी इंडिया में है? और अगर हमें शिक्षक सारे इंडिया में अगर उनको ट्रेन करना है, तो क्या एक या दो यूनिवर्सिटीज वो काम कर पाएंगी? ये क्या विजन है सर हमारा इस डायरेक्शन में? बहुत अच्छा सवाल पूछा विजेंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। देखिए, टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी की शुरुआत अगर आप हमारे पड़ोसी देश चीन से सीखे, तो उनके 17 राज्यों में टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी हैं। हमारे यहाँ अभी शुरुआत हुई है। सबसे पहले तमिलनाडु टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई, और उसके बाद गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन की शुरुआत हुई। वो एक इंस्टीट्यूशन है, और दो ऐसी संस्थाएं देश में हैं, और तीसरी नॉर्थ के, अगर मैं राज्यों के बारे में कहूं, उत्तर भारतीय राज्यों में, तो वी आर द फर्स्ट वन, जहां दिल्ली में कैपिटल में इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। और इसका जेनेसिस मैंने आपको बता दिया कि जब तक हम एक आइडियल टीचर का निर्माण नहीं करेंगे, जो कि पूरे अपने जीवन में, अगर पूरे कहें कि अपनी पूरी लाइफ का जिसका निचोड़ ये होना चाहिए कि वो टीचर्स का जो देश का निर्माता है, अगर हमने उसकी ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो हम किसी भी प्रोफेशनल का निर्माण नहीं कर सकते। तो एक आइडियली बहुत बड़ा विजन है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत देशों में साकार हो चुका। भारत सरकार और राज्यों की सरकार इस पर काम कर रही हैं। दिल्ली में ये अंकुर अभी 1 वर्ष पुराना ही है, तो नवजात, वी आर इन ए nascent stage and we are in inception stage, and we feel that ये, लेकिन ये इतनी बड़ी एक विजन के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग, देखिए यूनिवर्सिटीज में अभी भी, अगर विजेंद्र जी आप देखें कि टीचर्स को अदर डिसिप्लिन में, अगर वो मास्टर्स करता है एमबीए, तो सिंपली बीबीए को पढ़ाने चला जाता है। कोई एमटेक पास करता है, वो बीटेक को पढ़ा लेता है। लिबरल डिसिप्लिन में एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, तो बीए को पढ़ा लेता है। पीएचडी करके वो सीधे वो टीचिंग में आ जाता है। जब तक उसको टीचिंग पेडागोजी नहीं पता, जब तक उसको चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं पता, जब तक टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट का ही नहीं पता,
आपने हायर एजुकेशन में टीचर्स को बिना ट्रेनिंग के उनको, मैं बहुत खेद के साथ कहता हूं, इसके विषय में कोठारी कमीशन ने 1964-66 में ही ये बात की वकालत करी थी कि अच्छा। पेडागोजी ऑफ टीचर्स हायर एजुकेशन भी होना चाहिए। और धन्यवाद देता हूं नई शिक्षा नीति को, इसने इस बात की पुरजोर वकालत करी है कि हायर एजुकेशन के जो फैकल्टी हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के टीचर्स हों, चाहे मैनेजमेंट के टीचर्स हों, चाहे लॉ के टीचर हों, चाहे आर्किटेक्चरल एजुकेशन के टीचर हों, उन सभी को टीचर ट्रेनिंग कराना है। तो हमारा मैंडेट सिर्फ और सिर्फ स्कूल टीचर्स का निर्माण नहीं है विजेंद्र जी, हमारा जो मैंडेट है उन हायर एजुकेशन के टीचर्स की पेडागोजी को भी, जो लोग लग चुके हैं उनको इन सर्विस टीचर ट्रेनर, और जो लोग लग रहे हैं उनका ओरिएंटेशन कराना, कम से कम साल भर की उनको टीचिंग ट्रेनिंग देना। क्योंकि आप देखें, जब आप हायर एजुकेशन में पढ़ाने जाते हैं तो आज हमारा स्टूडेंट बहुत स्मार्ट है, वो इतना स्मार्ट है कि उसके पास बहुत सोर्सेस है सीखने के लिए। अगर टीचर उसके लेवल से एक कदम आगे नहीं होगा और वो उसके साथ कदम ताल नहीं कर सकता, अगर वो अपनी नॉलेज से अपने स्टूडेंट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो राइट सर। मैं बताता हूं कि बच्चों उस टीचर को खारिज कर देते हैं। 40 मिनट के लेक्चर में अगर वो अपने बच्चों को बांध नहीं सकता, उनको ओरिजिनल नॉलेज नहीं दे सकता, क्लासरूम के अंदर जिसे कहते हैं ना कि उसके पास कोई अपनी कोई सोच नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, और उसके पास क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है, पेडागोजी नहीं है, तो वो टीचर फिर 2-4 साल बाद धीरे धीरे कुछ कुछ अनुभव से सीखता है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। हमने स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग पे तो काम किया, लेकिन ये शिक्षा नीति कहती है जो टीचर कॉलेज में पढ़ा रहा है उसके लिए हमने क्या किया। तो शिक्षा नीति का जो 12वां पूरा 12th चैप्टर है, 12.5, वो इस बात की वकालत करता है कि वी ऑल्सो ट्रेन टू द not only pre-service but also the in-service teachers. So this is the mandate of our university to work on both the levels, at pre-service school level and in-service college level. सो एक मेरी इंक्विजिटिवनेस है सर कि नई शिक्षा नीति की जो हमने बात की थी 20 में आया था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम बोलते हैं, और आपने बताया आपका यूनिवर्सिटी 2022 मार्च में क्रिएट हुआ, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है, आपने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर टीचर ट्रेनिंग, स्पेशली हायर एजुकेशन डोमेन में। तो क्या उसी का आउटकम था सर ये? कैन वी से समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ये मंथन शुरू हो गया था बेसिकली 2005 में एनसीएफ के बाद हमारे पास कोई बड़ी नीति थी नहीं। उसके बाद 2020 में शिक्षा नीति आती है, और 1986 की नीति के बाद 36 वर्ष बाद देश को एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिलती है। और ये शिक्षा नीति अगले, मुझे लगता है कम से कम 20 या 25 वर्षों के लिए एक भारत के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट है। इस विजन डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। ये यूनिवर्सिटी उसी इथॉस, उसी परिपाटी पर बनी है, इसका जन्म उन्हीं मूल्यों पर हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है पूरी जो शिक्षा नीति है ये वही सपना साकार कर रही है कि देश के अंदर आज सबसे ज्यादा जरूरत है काबिल टीचर्स का निर्माण करना। जब आप काबिल टीचर्स बनाएंगे, आज हमारे टीचर्स का की तूती जो मैं कहता हूं वो पूरे विश्व में बोल रही है। हमारे टीचर्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड में है, कनाडा में बहुत डिमांड में है। और जब मैं डीन था यूनिवर्सिटी का तो मुझे याद है कि मेरे यहाँ से बीएड एमएड करके जो टीचर्स जाते थे वो मुझसे एक सर्टिफिकेट लेने जरूर आते थे, जो आउटसीज में उनकी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होता था। वो हमारी काबिलियत के ऊपर इतना उनको भरोसा है कि आज भी जो बेस्ट टीचर्स हैं पूरे यूएस में वो इंडियन हैं। उसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं हमने टीचर्स ट्रेनिंग पे काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर हम पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जो हमारी शिक्षा नीति का मंत्र है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, और हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, वर्ल्ड इज वन फैमिली, सो आवर टीचर्स आर बेसिकली स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन। हमारे शिक्षक विश्व में आज भी सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को बेस्ट बनाने के लिए इस प्रोफेशन को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। इसके अंदर वो गुरुत्वाकर्षण लाना पड़ेगा कि जो बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो आज इंजीनियरिंग और डॉक्टर मेडिसिन लाइन को अपना सब कुछ समझ रहे हैं, हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति कहती है वी हैव टू कैच देम यंग। इसीलिए आईटेक जैसे प्रोग्राम की बात करते हैं कि अच्छे टीचर्स बनाए जाएं। टीचिंग इज स्टिल कंसिडर्ड द लास्ट चॉइस विजेंद्र जी, स्टिल इज लास्ट रिसॉर्ट। हम एक्सीडेंटल टीचर्स बना रहे हैं, जिसको लास्ट में कुछ नहीं बना वो बीएड करने आ,
ठीक है। इस मिथक को और इस परिपाटी को खत्म करना होगा। अगर हम्म हमने बेस्ट टीचर्स को यहाँ नहीं रोका और बेस्ट हम्म टीचर्स हम्म नहीं बनाए, तो हमारा हम्म जो ब्रेन ड्रेन है वो होता रहेगा। उसको राइट सर। ब्रेन गेन में जो बदलने की बात ये शिक्षा नीति कहती है, इसके लिए यू हम्म नीड आइडियल टीचर, हम्म पैशनेट हम्म टीचर, जिनका जुनून हो, हम्म जो हम्म पैशनेट हो, जो रात दिन हम्म इसी सपने को लेकर जी रहे हो। क्योंकि हम्म पैसा आप और प्रोफेशंस में कमा सकते हैं, लेकिन ये हम्म प्रोफेशन क्रिएटर का प्रोफेशन है। वेरी बाकी गुड। प्रोफेशन में यू आर ए क्रिएचर, बट इन दिस हम्म प्रोफेशन यू आर ए क्रिएटर। तो नहीं। आप क्रिएटर का निर्माण अगर करना चाहते हैं, तो ऐसी हम्म यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पूरा संरक्षण देना चाहिए। हम्म और मुझे लगता हम्म है कि इस टीचर यूनिवर्सिटी से ये शुरुआत हो चुकी है। मैं हम्म यूजीसी का भी बहुत आभारी हूँ, केंद्र सरकार का हम्म भी, राज्य सरकार का भी, कि इस हम्म तरह का एक विश्वविद्यालय का विजन, एक सपना देख करके बनाया गया। अब हमें इसे हम्म आगे ऊंचाइयों पे ले जाना है, तो बहुत मिलके काम करने की जरूरत है। इसी ने कहा है हम्म कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वंडरफुल जोशी सर। सर आपने बहुत अच्छा बोला, वी नीड टीचर्स बाय चॉइस नॉट बाय चांस ओनली। एंड इंडिया के टीचर्स, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया के बाहर बट इंडिया में भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऐसे कैपेबल लोगों की, विच वी शुड कैच इन देयर यंग एज ओनली, और उनको बहुत अच्छे तरीके से क्वालिटी एनहांस करके उनकी रिक्वायरमेंट है। सर आप एक बहुत पुराने विश्वविद्यालय के डीन रह चुके हैं, और अभी आपको एक नया चैलेंज आपने लिया है जो एक टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पे आपने लिया है। एंड आई मे नॉट, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, बट यू आर द फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। जी। और जो फाउंडर वाइस चांसलर होते हैं वो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के सर फाउंडेशंस होते हैं, और पूरा कल्चर इंस्टीट्यूट का वही डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत चैलेंजिंग काम होता है सर ये, दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि आगे जितने भी आपके जो आएंगे सर वाइस चांसलर्स, वो आपके जो आपने सेटअप किया होगा सिस्टम उसी को फॉलो करेंगे। तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा जोशी सर कि आपका जो यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी है, एक तो वो एक ऐसे थीम पे काम कर रही है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड दैट इज द डिमांड ऑफ द आवर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। दूसरा, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। मैं आपसे कुछ चैलेंजेस के बारे में जानना चाहूंगा जो आप फेस कर रहे हैं बीइंग वाइस चांसलर ऑफ सो न्यू यूनिवर्सिटी। विजेंद्र जी, देखिए आपने बड़े मर्म पर चोट की है और अच्छी बात बोली है। मेरे लिए बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि ये एक लक्ष्य है, बीइंग ए फाउंडर वाइस चांसलर। फाउंडर वाइस चांसलर के पास चुनौतियां भी होती हैं और संभावनाएं भी होती हैं। उसको एक कैनवस भी मिलता है जिसमें अपने ढंग से वो कलर भर सकता है, और उसके पास उन चुनौतियों से जूझने का लक्ष्य भी होता है। हम अभी बड़ी न्यू यूनिवर्सिटी हैं, 1.5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हमारे सामने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, और कोई भी यूनिवर्सिटी एक एक तिनका तिनका जोड़ करके ही बनती है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, 100 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, वो एक दिन में तो नहीं बनी, लेकिन उनका पहला कदम अगर अच्छा पड़ा, तो वो आज इतने बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। तो इस यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर दी गई है। लेकिन इसमें चैलेंजेस सिर्फ ये है कि अभी जो नए शिक्षण प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम जो नई शिक्षा नीति में आए हैं, उनको अभी लाना है। क्योंकि अभी केवल पायलट मोड पर आईटेप प्रोग्राम सरकार दे रही है। हमें उसके लिए भी उन्होंने नेक, एनआईआरएफ और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसे पैरामीटर्स रखे हैं। अब चुनौती यह है कि कोई भी नया यूनिवर्सिटी जो 1.5 साल पुराना है, वो 5 साल से पहले नेक नहीं ले सकता, वो आवेदन भी नहीं कर सकता। 7 साल पहले वो एनआईआरएफ के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। लेकिन उसी तरह का पैरामीटर हमारे ऊपर भी है कि अभी हमें उसके लिए एलिजिबल नहीं करार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम एक्सेप्शन है इस रूल के, क्योंकि हम तो बने ही टीचर्स ट्रेनिंग के हैं। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से, ये हमारी एप्लीकेशन और हमारी रिक्वेस्ट जारी है कि हमें 4 वर्ष के आईटेप प्रोग्राम दिए जाएं और हम टीचर्स ट्रेनिंग में एक अच्छी मिसाल कायम करें। लेकिन अभी हमें उसी परिपाटी से आंका जा रहा है कि आपको नेक लेके आना है या एनआईआरएफ लाना है, तो हम अभी बड़ी उस स्थिति में नहीं है। और हमने केंद्र सरकार से भी प्रार्थना करी है, लेकिन हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि अभी पहला ही पायलट मोड है। तो जब सेकंड इसका दौर या थर्ड दौर जब शुरू होगा और ये ओपन हो जाएगा, तो फिर हमें भी ये कोर्स मिलेंगे। क्योंकि बाकी परंपरागत जो डिग्री कोर्सेज हैं, उसका भी ऑनलाइन पोर्टल अभी बंद है।
बीएड का पोर्टल ही बंद किया गया है। तो हम उसके लिए ऑफलाइन प्रार्थना पे कर रहे हैं कि हमें उसकी भी इजाजत मिले। मुझे लगता है कि देखिए ये टीदिंग ट्रबल होती हैं इनिशियल लेवल पर, तो हम अभी एजुकेशन में बीए एजुकेशन ऑनर्स ला रहे हैं, हमने मास्टर्स एजुकेशन एमए एजुकेशन शुरू कर दिया, हम यूजीसी के हिसाब से और कोर्सेज जो टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी हैं हम इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस में बदलना चाहते हैं, क्योंकि स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज अब एनईपी उसकी बात नहीं करता। तो हमें उम्मीद है कि हम और कोर्सेज से हमने यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी है, तो बहुत जल्दी हमारे पास आईटेप जैसे प्रोग्राम भी आ जाएंगे। मीनवाइल हमने सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम टीचर्स ट्रेनिंग में, इन सर्विस पेडागोजी के हायर एजुकेशन में जिसकी मैंने बात करी, और उसके साथ इन सर्विस स्कूल एजुकेशन के। तो हम 2 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इसी सत्र से। और उसके अलावा हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन भारतीय ज्ञान परंपरा पर और विकसित भारत @2047 जो भारत का बहुत बड़े हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और भारत सरकार और हमारे राज्यों की सरकार मिलकर सपने के लिए कार्य कर रही है। हम उस पर भी आईकेएस पर एक कोर्स ला रहे हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजी ऑनर्स जो 4 वर्ष का है वो भी अगले सत्र से हमारा जो है प्रपोज्ड है, क्योंकि आज कोरोना के बाद टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर आया है। आज अगर आप देखें स्टूडेंट के ऊपर सबसे बड़ी जो चैलेंज आया वो मेंटल हेल्थ पर आया 3 साल के कोरोना ने। और हमें लगता है तो ऐसे कोर्सेज, इनोवेटिव कोर्सेज जब हम लेके आएंगे, मास्टर्स इन ईसीसी, एमए इन ईसीसी, जो ईसीसी है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये पूरी शिक्षा नीति ने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया वो आप अगर देखें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पे दिया है। नर्सरी एजुकेशन को फाउंडेशन माना गया, क्योंकि अगर देखें पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन को आप देखें तो सबसे प्रिमिटिव जो ईयर होते हैं वो बच्चे के पहले 6 साल होते हैं। अगर हमने बच्चे के 3 से 6 साल के अंदर उस एजुकेशन पर काम किया, हम उनकी फाउंडेशन को अगर मजबूत नहीं कर पाए तो हम एक अच्छे मुझे लगता है कि नागरिक का निर्माण नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे मुझे लगता है टीचर का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो हम एमए ईसीसी भी लाना चाहते हैं, हम न्यूट्रिशन और डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहते हैं, हम मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहते हैं। सारे के सारे विषयों को धीरे धीरे शुरू करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने जैसे कहा लक्ष्य बहुत बड़ा है, और उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज अभी थोड़े कम हैं क्योंकि हम नए नए विश्वविद्यालय हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें जिस तरह से हमारे ऑनरेबल चांसलर ने मौका दिया कि यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है, और हमारे इसके सरकार ने भी जिस तरह से हमें अनुदान देकर के पूरा अपना सपोर्ट दिया है, तो हम केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ये कहें कि दोनों के तरफ से हमारे को इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ओन एंड ओन बाय द वाइस चांसलर्स विच कैन नॉट रन, universities always run with the statutes, ordinances and with the help of government. So that is the very important thing, and we are in a transition phase, क्योंकि पॉलिसी अभी 2020 में विजेंद्र जी आई है। 2 साल कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 साल नहीं होता, बहुत बड़ा समय, और 2030 तक तो वैसे भी इसका लक्ष्य है विजेंद्र जी, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये होने वाला है। राइट सर। प्रोफेसर जोशी, मैं आपकी यूनिवर्सिटी, आपने बताया कि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, और मैं जानना चाहूंगा सर इसकी कैचमेंट एरिया कितना है, इन द सेंस दैट टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन कौन से टीचर्स, मतलब दिल्ली स्टेट के या दिल्ली के बाहर के या प्राइवेट टीचर्स या गवर्नमेंट टीचर्स, वो थोड़ा जानना चाहेंगे कि कैचमेंट एरिया क्या है सर। विजेंद्र जी देखिए, यूनिवर्सिटीज आर यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय हैं, तो विश्वविद्यालय का डोमेन स्टेट नहीं होता, वो नेशनल भी नहीं होता, वो इंटरनेशनल होता है। इसके लिए हमने बहुत सारे विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से एमओयूज करने शुरू कर दिए। हमने स्पेशल एजुकेशन के लिए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से किया है, हमने कोरिया की जॉनजू यूनिवर्सिटी से किया है, उसके अलावा हमने जो है आपके दिल्ली और भारत के बहुत सारे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू कर रहे हैं हम। इसकी वजह क्या है कि हमारा जो कैचमेंट है वो केवल स्टेट नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का जो बेसिकली प्राइमरीली जो फोकस है वो स्कूल टीचर्स का है। दिल्ली के अंदर अकेले ही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर 60,000 टीचर्स हैं गवर्नमेंट में, और 1.5 से 2 लाख टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में। और उसी तरीके से हमारे डाइट्स हैं, उनके अंदर हजारों टीचर काम कर रहे हैं। हमारे हायर एजुकेशन में दिल्ली के अंदर 9 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर हजारों प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जो कि लिबरल डिसिप्लिन से हैं। तो हमारा कैचमेंट मैंने बताया
कि बीएड के अलावा इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है। तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में हम स्कूल के टीचर्स के लिए भी काम कर रहे हैं और हम यूनिवर्सिटी, और उसके लिए हमारी सीमाएं सिर्फ दिल्ली राज्य नहीं है, उसके लिए पूरे भारत से अभी हमने, जैसे कि मैंने भी बताया, आईकेएस के ऊपर एक हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 8 जनवरी से। आप समझिए इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को सीखने के लिए भारत से ज्यादा लोग, भारत से बाहर के टीचर्स उसमें इंटरेस्टेड हैं और एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्योंकि जब हम वर्चुअल मोड पे करते हैं कोई भी प्रोग्राम या हाइब्रिड मोड पे करते हैं तो देयर इज नो बाउंड्रीज। अब तो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है विजेंद्र जी। यूनिवर्सिटीज सार्वभौमिक होती हैं, यूनिवर्सल होती हैं। हाँ, वो अपने राज्य के स्टैच्यूज से बंधी अवश्य होती हैं, लेकिन उनका एकेडमिक दायरा, उनका एकेडमिक जो दायरा होता है वो पूरे विश्व को केंद्रित होता है। सर, आपने बताया कि वर्चुअल मोड में बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं और आपने बहुत बड़ा नंबर भी कोट किया एक ट्रेनिंग के जो इंटरेस्टेड हैं या जिनको दिया जाना है। जानना चाहेंगे सर कि ये वर्चुअल मोड में या ऑनलाइन मोड में रहेगा या ऑफलाइन ट्रेनिंग का भी प्रावधान है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर? विजन जी, अभी फिलहाल हम मुखर्जी नगर ऑटरम लेन्स में हमारे पास 4 एकड़ का एक ट्रांजिट कैंपस है, जहां पर 70 से ज्यादा कमरे, मल्टीपर्पज हॉल, लैब सब कुछ है। लेकिन कोरोना के बाद स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें यूजीसी ने भी हाइब्रिड मोड ही सजेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों से हैं, जो वहां पर फिजिकली नहीं आ सकते। तो हमने जो भी प्रोग्राम अभी हम लॉन्च कर रहे हैं वो हम हाइब्रिड मोड पे कर रहे हैं। और हाइब्रिड मोड का फायदा क्या होता है कि मान लीजिए आप पंजाब से ज्वाइन करना चाहें तो हम आपको वहां से ज्वाइन करा सकते हैं, और जो दिल्ली का टीचर आना चाहता है वो वहां आकर के पढ़ सकता है, वो वहां के ट्रेनिंग ले सकता है। तो मिक्स मेथड अप्रोच हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ट्रेनिंग बिल्कुल प्योरली ऑफलाइन भी करें, क्योंकि ऑफलाइन का एक अपना एक तकाजा होता है और ऑनलाइन का अपना एक तकाजा होता है। लेकिन जो यूजीसी के मैंडेट के हिसाब से अभी, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, मैंने आपको बताया। और जब हम कोई कार्यक्रम लॉन्च करते हैं तो हमारे पास जो हम सोशल मीडिया से हमारे पर रिक्वेस्ट आती है, मेल आती हैं, बाहर के लोग इतना इंटरेस्टेड हैं, और राज्यों से भी, भारत के बाहर से भी। तो मुझे लगता है अब सीमाएं कोरोना के बाद हट गई हैं, और जो वर्चुअल जो वर्ड है वो रियल वर्ड बन गया। आज आपके साथ जो इंटरव्यू भी मुखातिब हो रहे हैं आप, वो भी एक हम ऑनलाइन पोर्टल से हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे समय की, आने जाने की तमाम दिक्कतें खत्म हो गई हैं। और आई बिलीव दैट वी शुड डू समथिंग। हमारा मोटिव होना चाहिए कंस्ट्रक्टिवली देश का विकास करना, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना, और एक आदर्श टीचर्स का निर्माण करना। जोशी सर, एक जो पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप एक फाउंडिंग वाइस चांसलर हैं बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट पे बनी हुई यूनिवर्सिटी, दैट इज टीचर्स यूनिवर्सिटी के। शुरू के सालों में, जैसे अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर, आपने जैसे बताया 1.5 साल हुआ है इस यूनिवर्सिटी को। शुरू के शुरू के ईयर्स में किसी भी इंस्टीट्यूट का सर विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए जाते हैं, स्पेशली बाय द फाउंडिंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। आई एम वेरी श्योर सर आपने इस डायरेक्शन में काफी काम कर लिया होगा। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या विजन्स, क्या टारगेट्स लेके चल रहे हैं? मे बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपने क्या सेट किया है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं गीता में बहुत ज्यादा अध्याय गीता के पढ़ता हूँ, और एक मेरा उसका है जो बहुत सुंदर उसका श्लोक आता है। वो कहता है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ यस, फलेषु कदाचन। तो राइट कर्म सर। करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। हमने अपने लिए 5 वर्ष के और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए 10 वर्ष के लक्ष्य भी बनाए हैं। 5 इयर्स विजन के अंडर हम ये चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बनाएं, और इस यूनिवर्सिटी में एक नहीं, सभी डोमेन्स की एजुकेशन दी जाए, और प्राइमरीली फोकस टीचर ट्रेनिंग के ऊपर रहे। तो एक हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा हमारा चैलेंज है, और यही हमारा लक्ष्य भी है। दूसरा, हम ये चाहते हैं, देखिए, इस यूनिवर्सिटी को समाज से जोड़ा जाए। विजेंद्र जी, जहां मैं पढ़ाता हूँ, जहां मेरे यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थापित है, उसके बगल में एक बहुत बड़ी स्लम बस्ती भी है, जिसको दिल्ली की धारावी कह सकते हैं, ऑटम लेन्स गुरु तेग बहादुर जीटीबी बस्ती। वहाँ 4-5 हजार परिवार, गरीब परिवार रहते हैं। ज्यादातर की मूल आमदनी जो है दैनिक मजदूरी है। उसमें फीमेल जो है वो जो है जो मातृ शक्तियां हैं, वो ज्यादातर घरों में हाउस होल्ड जॉब करती हैं, और डेली वेजर्स में उनके उनके हस्बैंड काम करते हैं। उनके बच्चे जो कि हैं, जो वहां पर हैं,
वो बहुत महरूम हो जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन से। हालांकि ऐसा। वो स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको 1 to 1 जिस तरह का फोकस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हमने अपने यहाँ पर एक कम्युनिटी स्कूल चलाया हुआ है। ये एक हम्म CSR है इस यूनिवर्सिटी का। वहां हमने हम्म 50 बच्चों से शुरुआत करी थी, जो आज 250 बच्चों में वो हम्म संख्या बढ़ गई है। 5 सेक्शंस हम चला रहे हैं। इसको हम्म हमने दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी कम्युनिटी स्कूल नाम दिया है इसका। ये कम्युनिटी स्कूल प्रोग्राम, देखिए मैंने अभी US का दौरा किया था, मैं एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल में गया। मैंने अमेरिका के 12 राज्यों में देखा, और ये हमें वहाँ के US की स्टेट डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया था। पंजाब से भी 2 टीचर्स गए थे, दिल्ली से मैं अकेला था। वहां हमने देखा कम्युनिटी कितना पावरफुल रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ एक बड़ा दुखद विषय है कि स्कूल के बाहर जो कम्युनिटी है और जो हम्म विश्वविद्यालय हैं वो बिल्कुल हम्म अलग थलग है। स्कूल अलग पड़े हैं, विश्वविद्यालयों की राह अलग है। विश्वविद्यालय हम्म स्कूल को कुछ नहीं देखते, ना उनके प्रति अपनी जवाबदेही समझते। हालांकि ये मैं हम्म सभी के ऊपर ये टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जनरली हम्म विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज हैं वे सेपरेट देयर विजन एंड गोल एंड मिशन, और स्कूल्स हम्म की दुनिया अलग है। इनके बीच हम्म में ये विश्वविद्यालय एक सेतु का काम कर रहा है, एक ब्रिजिंग द गैप बिटवीन। हमने उस हम्म यूनिवर्सिटी ने हमारी यूनिवर्सिटी ने उस बस्ती को अडॉप्ट कर लिया, और बहुत ओके। सारी जो NGO और जो हमारी जो सिविल सोसाइटी हैं उनसे हमने हम्म रिक्वेस्ट करी कि वो रिसोर्सेज दें। उन बच्चों से हम्म हम एक भी पैसा, नॉट वी आर नॉट टेकिंग एनी सिंगल पेनी, उनको हम्म स्टेशनरी से लेके उनको जो है उनको बैग से लेकर उनको पढ़ने की सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो सब फ्री हम्म ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और हमारे हम्म जो स्टूडेंट हैं, जो मास्टर्स के हम्म स्टूडेंट हैं हमारे, और जो हमारे हम्म बैचलर के स्टूडेंट हैं, उनको हमने हम्म उनका मेंटोर बना दिया। एक एक बच्चे के हम्म अंदर 5-5 बच्चे उसके, और माता पिता भी, एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और हम हम्म उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर हम्म स्कूल, वो 2 बजे के बाद बच्चे आते हैं और 6 बजे तक हमारा स्कूल चलता है। सैटरडे संडे में भी इसको हम चलाते हैं। तो एक हम्म समुदाय के प्रति जो हमारा जुड़ाव होना चाहिए। आज हम्म देखिए वो बच्चे, हमारे जो हम्म स्टूडेंट हैं और वो जो नन्हे बच्चे आते हैं, वो मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। और हम्म एक एक बच्चे में जो स्टूडेंट है, 12-13 हम्म साल से लेके 18 साल तक की जो चाइल्ड है हमारे, जो गर्ल चाइल्ड है, उनके सपने देखिए, वो जज बनना चाहती हैं, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, वो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वो गायक बनना चाहते हैं, उनके पास पूरी दुनिया है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी बस्तियों को अडॉप्ट कर ले, तो मुझे लगता है कि फिर वो एक बहुत बड़ा, यस। मुझे लगता है विजेंद्र जी, ये सोशल ऑब्लिगेशन होगा। तो मेरा सपना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का एक परमानेंट स्कूल चले, और हम अपने रिसोर्स का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। क्योंकि बिल्कुल। यूनिवर्सिटी शाम को 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, वहां पर बहुत ज्यादा हम केवल को करिकुलर के अलावा नहीं करते। इस तरह के इनिशिएटिव हम सैटरडे संडे में भी ले सकते हैं। तो मैंने ये एक छोटा सा पौधा अपनी सोच से लगाया है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये वृक्ष बनेगा, और हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के NSS के वॉलेंटियर आ रहे हैं, जिनको पढ़ाना है, और वो हमसे चाहते हैं कि वो हमारे इस काम में जुड़ें। और हम उन्हें कोई पारितोषिक नहीं देते, दे आर द वॉलेंटियर, दे आर कमिंग, एंड आई बिलीव दैट हमारे पास कोई डर्थ नहीं है इंटेलेक्चुअल कैपिटल की, हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। लोग जो हैं इतना दान करते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। अगर ऐसी कम्युनिटी के स्कूलों में आकर वो अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल दें और हमारे इन बच्चों के साथ जुड़ें, तो मैंने एक मुहिम के तौर पे इसे रखा है। तो मैं वेरी चाहता ट्रू। हूं कि हमारा ये जो सोशल इम्पैक्ट है, ऐसी इम्पैक्टफुल यूनिवर्सिटी बनानी है। सिर्फ डिग्री बांटने वाली यूनिवर्सिटी ये हमने स्थापित नहीं करनी है। वेरी ट्रू। प्रोफेसर जोशी, हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म सुना होता है। आपने जी जो एग्जांपल दिया सर, वो एक एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्ट एग्जांपल है। जी और आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू गिव डिविडेंड इन फ्यूचर सर। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से। सर मेरे लास्ट दो क्वेश्चन अब आपसे जो हैं, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा। एक तो सर मेंटरिंग से रिलेटेड है, कि आपने वैसे इस चीज को थोड़ा सा आंसर किया कि आप कैसे मेंटरिंग कर रहे हैं बाकी लोगों का, बाकी इंस्टीट्यूट्स का। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उसमें चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, वो आपकी एक्सपर्टीज का बेनिफिट उठाना चाहें, आपसे मेंटरिंग चाहें, कैसे ले सकते हैं? बिकॉज टीचर ट्रेनिंग हर इंस्टीट्यूट को चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं सर कि हर इंस्टीट्यूट के पास वो उसके लिए डेडिकेटेड पैराफर्नेलिया या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। जो आप क्रिएट कर रहे हैं, आप एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग में, तो वो आप कैसे वो आपसे मेंटरिंग ले सकते हैं सर? उसका क्या प्रोविजन होगा? विजेंद्र जी, हमारे लिए स्काई इज द लिमिट। हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ना जरूर चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि हम कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में भी,
जो जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग नहीं होती। सपोज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उसी के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। सोनीपत में ऋषिहुड यूनिवर्सिटी चलती है, एक कॉलेज चलता है महाराजा अग्रसेन कॉलेज दिल्ली में। हमने उनके साथ रिसोर्स शेयरिंग किया है। हमारे पास टीचर्स की कैपिटल है, जो टीचर्स ट्रेनर है उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट के, तो हम उनके लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, मिलकर के किया जा सकता है। और उसके लिए हम उनके साथ अगर वो एमओयू करना चाहें हमारे साथ तो बहुत अच्छा है, ताकि हमारी उनके प्रति जवाबदेही और सुनिश्चित हो जाए और उनकी टर्म्स और कंडीशन हमें पता चले। तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन है कि दो इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करें। जब दो इंस्टीट्यूशंस मिलके काम करते हैं तो मुझे लगता है कल्चरल इनपुट्स भी शेयर होते हैं, एजुकेशन इनपुट्स भी शेयर होते हैं, फिजिकल इनपुट्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट्स भी शेयर होते हैं। किसी चीज में हम अच्छे हैं, किसी चीज में वो इंस्टीट्यूशन हमारे से बहुत आगे हैं, क्योंकि हम अभी बड़े इंसेप्शन स्टेज में हैं। तो मुझे लगता है एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन से काम किया जा सकता है, और इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किए जा सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकते। सपोज पंजाब की कोई यूनिवर्सिटी हमसे जुड़ना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम उनके साथ कोई डिजिटल पेडागोजी के ऊपर कोई रिसोर्स हम कर लें, उनके लिए हम ऐसे प्रोग्राम बनाएं कि उनके टीचर्स वहीं से उसे ज्वाइन कर लें। तो ये एक जहां चाह वहां राह मुझे लगता है कि हो सकती है, अगर आपके इरादे नेक हों और आप अगर कुछ करना चाहते हो और आप अगर क्रिएटिव हैं, तो देर आर सो मेनी वेज एंड यू कैन डू इट, बिकॉज वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे और हम बहुत ज्यादा केवल और केवल हमारा ऑब्जेक्टिव और मिशन क्लियर होगा कि हमने इस देश में आदर्श टीचर्स का निर्माण करना है, हमारे यहाँ पलायन बहुत हो रहा है, अच्छे टीचर्स यहाँ से निकल रहे हैं, और इस टीचिंग प्रोफेशन में अच्छे लोगों को अगर लाना है तो हमें इसको बहुत पॉपुलैरिटी करनी होगी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की। और इसके लिए शिक्षा नीति हमारे लिए बाइबल, गीता या ग्रंथ साहब या कुरान है, और हम उसी के पद चिन्हों पर चलें, और आई बिलीव दैट स्काई इज द लिमिट फॉर अस। थैंक यू। Very true. Professor Joshi, my last question to you is again related to implementation part of national education policy. सर, जब हमने बहुत से वाइस चांसलर से बात किया, हम डिस्कशन किया, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सा डिबेट भी चला रहता है। सो एक पॉइंट निकल के आता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, थ्योरेटिकली बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया गया है, इसमें बहुत अच्छे आइडियाज हैं, यूटोपियन आइडियाज इसमें बोले जाते हैं, आइडियल इसमें पॉइंट्स हैं। लेकिन जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो शायद इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे ये डॉक्यूमेंट उतना रिजल्ट ना दे या उसका डिविडेंड ना मिले, ये क्रिटिसिज्म भी इस एक पॉलिसी का बोला जाता है। आप इसको कहाँ तक मानते हैं और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप? देखिए, मैं एजुकेशन के साथ साथ लिटरेचर का भी स्टूडेंट रहा हूँ। आई बीन टू स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, और आई हैव रेड कबीर दास जी जो कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छमाए, कि आप और गांधी जी कहते थे आपके आलोचक ही आपके परम मित्र हैं, मुखालफितों से मेरी शख्सियत सुधरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, माई क्रिटिक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए, जब तक आलोचक नहीं होंगे तब तक आप बढ़ भी नहीं पाएंगे। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि इस यूनिवर्सिटी, इस नीति को भी कुछ लोग यूटोपियन बताते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर नीयत साफ हो तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे आज के दौर के एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी, और मैं पोएट्री में बात आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं होती सिर्फ नीयत की खराबी है। अगर हमारी नीयत साफ हो, और वो नीयत एक व्यक्ति की नहीं, सबकी नीयत साफ हो, सब। ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिसी मेकर्स की, टीचर्स की। इम्प्लीमेंट करने वाला कोई पॉलिसी मेकर नहीं है, इम्प्लीमेंट करने वाला तो वो टीचर है। आप हाँ जी। टीचर को कक्षा में भेज देंगे, 40 मिनट वो कक्षा के अंदर क्या कर रहा है इसके लिए आप क्या करेंगे? उसको आप कह सकते हैं कि जाके पढ़ाए, और अगर वो ओरिजिनलिटी टेक्स्ट से ना पढ़ाए, अगर वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करे, तो कैसे ये नीति इंप्लीमेंट होगी? तो मुझे लगता है, देखिए, ये बात सही है कि वी आर वेरी गुड इन एग्जीबिशंस। मेरे सामने भी किसी ने ये बात कही, और मैं इन कोट्स आपको मैं बात करता हूँ कि वी आर वेरी गुड इन एग्जीबिशंस इन लास्ट 75 ईयर्स, बट वी आर वेरी पुअर इन इम्प्लीमेंटेशन। कि हम एग्जीबिशन बहुत लगाते हैं लेकिन हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। लेकिन ये देखिए, ये सब चीजें नीयत पर आके टिकती हैं। अगर हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच साफ है, तो देखिए, एक छोटी सी चिड़िया भी जब पानी में, चोंच में पानी भर के लाती है, तो उससे और उसके साथी पूछते हैं, इतनी बड़ी जंगल की आग को तुम अपनी चोंच से जो पानी लाई हो कैसे बुझाओगी? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया विजेंद्र जी, कि जब इतिहास लिखा जाएगा
तो कम से कम मेरे ऊपर ये लांछन नहीं आएगा कि मैंने प्रयास नहीं किया। प्रयास नहीं तो है। अपनी वेरी ट्रू। अपनी उंगली में, अपनी अंजुली में जितना पानी भर सकें, हम अपनी तरफ से तो कुछ करें, हम अपनी नीयत तो साफ रखें। अगर मैं वाइस चांसलर हूं, अगर मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूं, मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स अपना बेस्ट दें, मेरे बच्चे अपना बेस्ट दें, तो मुझे लगता है कि ये नीति क्यों नहीं कामयाब होगी, जो कि बहुत सुंदर नीति बनी है। लेकिन उसको कामयाब करने का जिम्मा सिर्फ राजनीतिज्ञों का नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, ये हम सबका है। और ये सबका सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, भारत पुनः विश्व गुरु बने। इसके लिए वी हैव टू स्ट्राइव टुगेदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर। अगर हम इसको बेस्ट मॉडल बनाना चाहते हैं तो एक एक व्यक्ति को मिलकर काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और अकेले से नहीं होगा, ये सबका होना है। और एक व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है इस पूरी नीति ने, आप पूरा पढ़िए अगर, तो ये उम्मीद करके एक एक अध्यापक से कि वो अपना सब कुछ का मतलब होता है कि फॉर मनसा वाचा कर्मणा, वो तीनों एस्पेक्ट से इस पे काम करे। आई बिलीव दैट कि हमें इस पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं होगा, उसके ऊपर अमली जामा पहनाना पड़ेगा। और ये सही समय है, सही शुरुआत है, और इसी वक्त हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। Very wonderfully said, sir. Professor Joshi, that brings us to an end of this wonderful session. I must say, sir, इंडिया को आप जैसे वाइस चांसलर की रिक्वायरमेंट है। यू आर अ वंडरफुल नॉलेजेबल इंडिविजुअल, सर, वेरी गुड ओरेटर। और जितना भी टाइम आप जैसे इंसान के साथ बैठ के लगाया जाए, दैट इज एनरिचमेंट। बहुत अच्छा लगा, सर। दैट इज माय जेन्युइन अप्रेजल फॉर योर टाइम विच आई गॉट फ्रॉम योर साइड। ये जितना भी आपने बातें बताई, सर, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आई एम वेरी श्योर उनको बहुत बेनिफिट होगा, सर। खासकर आपकी जो पॉजिटिव आउटलुक है, आपका जो रैशनल अप्रोच है, वो हर इंसान के होने चाहिए, स्पेशली हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि उनके ऊपर दायित्व ज्यादा ज्यादा होता है, सर। तो एक ऐसे पॉजिटिव लोग, विजनरी लोग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिमिस्टिक लोग हमें रिक्वायर्ड हैं, सर। प्रोफेसर जोशी, बहुत अच्छा सारा के सारा मेरे जितने क्वेरीज थी, क्वेश्चन थे, आपने आंसर किए। और आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं, सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो है टीचर ट्रेनिंग। एंड आई एम वेरी श्योर, सर, ये कमिंग ईयर्स में हम देखेंगे टीचर्स का क्वालिटी बढ़ेगा, और टीचर्स बाई चॉइस इस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो अगेन, सर, मैं अपनी तरफ से और अपने व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आपने थैंक संडे के दिन टाइम दिया और बहुत अच्छा यू। आपने हमें बताया। थैंक यू नमस्कार, सर। विजेंद्र जी, इट्स माय ऑनर एंड माय प्रिविलेज कि आपने इतना सुंदर शब्दों में मैं कहूँ कि एक एक प्रश्न आपका क्वालिटी ओरिएंटेड था, और आपने बहुत ही सटीक सवालों से बात शुरू करी। मैं बस अपना दायित्व पूरा करूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह नए बनाते हैं, और जो पद चिन्ह नए बनाते हैं वो जग में जाने जाते हैं। तो वेरी आपको ट्रू। अपने फुटप्रिंट्स खुद ही बनाने हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एक इंटेलेक्चुअली, आपके पास एक अच्छी प्रतिभा है, और आपने एक बहुत जीवंत साक्षात्कार लिया। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्लीज शेयर करें वाइडर लेवल पर, और मिल के काम करें। आप हम सब एक ही ध्येय को लेके चल रहे हैं। वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर ओनली वन ड्रीम, चेरिशिंग ओनली वन ड्रीम, दैट इज वी नीड ए बेस्ट टीचर्स इन दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच अगेन विजेंद्र जी, सो नाइस ऑफ यू। थैंक नमस्कार। यू, सर।